Bismillah Rahman Rahim. Assalamu alaikum. Welcome to our online lecture series on electronic devices and circuits. This is Muhammad Uwais, your course instructor. In last lecture, we started the topic of MOSFETs, metal oxide semiconductor field effect transistors, and we also discussed the physical structure of the MOSFET. And apart from that, we also discussed how a channel is created and why is a channel called inversion layer. And so to summarize, we now know that in order to form the channel, we have to apply some voltage at the gate to source voltage VGS. That voltage has to be greater than the threshold voltage. And so the minimum value is threshold voltage. And at that minimum value, the channel is just created. If you want to enhance the capacity of the channel, what you do is you increase VGS. So the effective voltage was VGS minus VT. This was the summary from our last lecture. पिछले लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने देखा था कि चैनल जब क्रिएट हो गया है उसके बाद इफ यू अप्लाई सम VDS देन करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग एंड वहाँ हमने देखा था कि VDS वाज वेरी स्मॉल. हमने एक बहुत स्मॉल वैल्यू अप्लाई की थी VDS की और तब हमने देखा था कि व्हेन VDS इज स्मॉल, as you increase the VGS minus VT or the capacity of the channel, the current was increasing and there was a linear relationship. But remember there our VDS was very small. अब ये हम क्या करने जा रहे हैं? We are gradually increasing our drain to source voltage, and then let's see what happens, how the current flow changes and how the characteristic changes for a MOSFET. This is what we are going to discuss today. So for this case, the figure is shown here. Assume that the channel has been created. This VGS जो आपको यहाँ नजर आ रहा है, this VGS is greater than VT. This means कि channel आपके पास बन चुका है. अब यहाँ पे if you have a look at the channel, you will see this is tapered at an angle. ठीक है, slanted है आपके पास, बिल्कुल level नहीं है. ये किस तरीके से बन रहा है, यही मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ. Okay, so now what we have done, we have applied a source VDS. ठीक है, drain to source voltage apply किया. For instance, let's assume that the value of VGS is 5 volt initially. ठीक है, VGS is 5 volt and let VDS be equal to 2 volts for instance, or let it be 1 volt. ठीक है, so हमने अप्लाई किया है VDS. अब this VDS is actually appearing as a voltage drop across the length of the channel. ठीक है, ये जो VDS है हमारे पास, this is appearing across the length of the channel. So अगर हम source के ऊपर बात करें at the source end, तो हमें नजर आएगा कि the voltage with respect to source is 0. ठीक है, यानी सोर्स यहाँ पे ग्राउंड है तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 0. और अगर ड्रेन पे देखेंगे तो कितना होगा? फॉर इंस्टेंस जैसे अगर हमने कहा था कि लेट दिस बी 2 volt students. ठीक है, let it be 1 volt for instance. If this is 1 volt and if this is 0, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हमें 0 मिल रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारे पास 1 volt हो रहा है. ठीक है, सो जैसे जैसे हम चैनल के अक्रॉस मूव करें फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन, हम देख रहे हैं वोल्टेज इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 टू 1 वोल्ट. ठीक है, विद रेफरेंस टू सोर्स हम बात करें इस वक्त. ओके, now also note that we have applied some VGS and now assume that this VDS be equal to for instance 5 volt. ठीक है, सो हमने यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है 5 volt. अब क्या हो रहा है हमारे पास? नाउ इफ यू सी, देखिए ये चैनल साइड है, दिस इज योर गेट साइड. तो चैनल पे यहाँ पे आपके पास वोल्टेज कितना आ रहा है? 0. इस तरफ जो सबस्ट्रेट रीजन है इस साइड के ऊपर 0 है और जो गेट के ऊपर है हमारे पास 5 वोल्ट है. अब आपके पास होता क्या है कि चैनल क्रिएट जो हो रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द दीज टू वोल्टेजेस. ठीक है, सो 5 एंड 0. सो अगर आप यहाँ पर डिफरेंस देखें तो क्या होगा अगर मैं उसे एक डिफरेंट कलर से दिखाऊं फॉर इंस्टेंस. ठीक है, let it be this green. So 5 minus 0 is 5 volt. ठीक है, यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है स्टूडेंट्स? So this difference is 5 volts. ठीक है, यहाँ पे और फिर क्या हो रहा है अगर इस साइड के ऊपर आप देखते हैं तो दिस इज 5 minus 1 is equal to 4 volt. ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ. So what is happening, जो मैंने ग्रीन से बनाया है, this is actually the difference between these two. ठीक है, so the fact is this,
that the voltage that you have applied this VGS and VDS, and because of this आपके पास हो क्या रहा है, the voltage between the gate and points along the channel, it is decreasing from VGS at the source end to VGS minus VDS at the drain end. ये चीज शायद आपको थोड़ी कंफ्यूज करे। देखिए हम ये कह रहे हैं कि चैनल डिक्रीज हो रहे हैं, चैनल का जो वोल्टेज है फ्रॉम VGS एट द सोर्स एंड। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या सोर्स के ऊपर VGS है या नहीं है, ठीक है, जो जो डिफरेंस है इनके दरमियान। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 0 है और यहाँ पे 5 है। व्हाट इज 5? 5 इज माई VGS, दिस 5 इज VGS, ठीक है, दिस इज इट, दिस इज योर 5 volts. So if you see यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज 5 वोल्ट है, so VGS is equal to 5 volt, in which we can see, so at this point we have 5 volt. और अगर आप इस एंड पे देखेंगे तो this is coming out to be 4 volt, and this 4 volt is because of 5 minus 1, which is equal to 4 volt. So this 5 is your VGS, ठीक है, sorry, this is your VGS and this one is actually your VDS, ठीक है। सो आपको जो रिजल्टेंट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, दिस इज VGS माइनस VDS। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास वोल्टेज इज एक्चुअली डिक्रीजिंग फ्रॉम VGS साइड। कौन सा जो डिफरेंस है जिसको मैंने यहाँ पे ग्रीन से बनाया है, सो 5 वोल्ट है यहाँ पे और ये आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहा है। तो जहां पे आप देख सकते हैं वोल्टेज ज्यादा है वहां पे आपको चैनल की डेप्थ ज्यादा नजर आ रही है, और जहां वोल्टेज कम है वहां पे आपको चैनल की डेप्थ कम नजर आ रही है, ठीक है। लेट्स डिस्कस दिस फर्दर। अब देखिए यही जो चैनल की जो डेप्थ है ना वो इस वोल्टेज डिफरेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो वी सॉ कि इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास डिफरेंस कितना आ रहा था स्टूडेंट्स, इट वाज 5 वोल्ट्स, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा था कि इट वाज 5 वोल्ट्स डिफरेंस, एट दिस पॉइंट दिस वाज 4 वोल्ट्स। ये भी सिर्फ समझाने के लिए हमने VGS कितना अप्लाई किया हुआ है, दिस VGS इज 5 वोल्ट एंड दिस VDS एट द मोमेंट इज 1 वोल्ट, ठीक है। सो इससे क्या पता चला कि यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम डेप्थ कितनी होगी, यहाँ पे होगी आपके पास। सो एट सोर्स एंड द चैनल इज मैक्सिमम, ठीक है, यानी इसकी डेप्थ मैक्सिमम है, और इस तरफ जैसे जैसे आ रहे हैं आपके पास चैनल शैलो होता जा रहा है, ठीक है, यानी इसकी डेप्थ कम होती जा रही है। यही वजह है कि आपके पास यहाँ पे एक जो शेप मिल रही है आपको, दिस इज अ टेपर्ड शेप, ठीक है, और ये चीज मैंने आपको डिस्कस की थी, आपको एक टेपर्ड शेप नजर आ रही है। सो आई होप नाउ दिस इज क्लियर टू यू कि टेपर्ड क्यों है, ठीक है जी। अब होता क्या है, जैसे जैसे आप VDS को इंक्रीज करते हैं, तो फॉर इंस्टेंस लेट सपोज आपने अब VDS को आपने कहा नहीं 1 नहीं, अब मैं इसको चेंज करके लेट सपोज मैं इसको 2 वोल्ट्स कर देता हूँ। सो अगर आपने इसे VDS को 2 किया तो यहाँ पे डिफरेंस कितना हो गया ना, 5 माइनस 2 इज 3 वोल्ट्स, ठीक है, दिस इज 3 वोल्ट। और फिर अगर आपने इसको मजीद इंक्रीज कर दिया, लेट सपोज आपने इसको 3 कर दिया, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3 विल बी इक्वल टू 2 वोल्ट। तो जैसे जैसे आप करते जा रहे हैं ये स्लोप बढ़ता जाएगा, ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे 5 वोल्ट है तो फिर पहले यहाँ पे 4 था, फिर 3 हुआ और फिर 2 हुआ। जैसे जैसे वोल्टेज कम होता जा रहा है तो ये चैनल यहाँ पे इसकी डेप्थ कम होती जा रही है, ठीक है। और जब चैनल की डेप्थ कम हो रही है तो एसेंशियली जो इसकी रेजिस्टेंस है वो क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। और यही वजह है कि अब आपके पास जो चैनल है वो आपके पास जो ID VDS का कर्व है, जो हमने पीछे देखा था कि इनिशियली जैसे जैसे आप VDS को बढ़ा रहे हैं ID बढ़ रहा है, एक वक्त आएगा जिसके बाद ये आपके पास बढ़ना स्टॉप हो जाएगा। और ये जो ID VDS कर्व है दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। पीछे जब हमने देखा था कि व्हेन VDS वाज स्मॉल वी सॉ दैट दिस वाज अ स्ट्रेट लाइन। तो वो कौन सा रीजन था स्टूडेंट्स, वो हमारे पास ये रीजन था कमोबेश, ठीक है, वेयर VDS वाज वेरी स्मॉल। उसको बहुत ज्यादा आपको एग्जेजरेट करके दिखाया होता है उस रीजन को, मैं इसको यहाँ दिखा देता हूँ, ठीक है। दिस इज द रीजन जिसकी हम बात कर रहे हैं, दिस इज द रीजन वेयर VDS इज स्मॉल, और यहाँ पे एक लीनियर रिलेशनशिप है। सो आप ऐसे ऐसे VDS को बढ़ा रहे हैं तो आपके पास करंट भी बढ़ रहा है, लेकिन आगे चल के आपके पास ऐसा नहीं होने जा रहा, बल्कि आपका कर्व आहिस्ता आहिस्ता बेंड होने जा रहा है। बेंड क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके पास जो चैनल है इट इज एक्चुअली चेंजिंग, और चैनल की जो रेजिस्टेंस है वो आहिस्ता आहिस्ता आपके पास रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही है एज यू इंक्रीज VDS, एंड देयर विल बी वन पॉइंट
ये पॉइंट जो मैं आपको अगर मैं स्पेसिफिकली बताऊं स्टूडेंट्स, दिस पॉइंट इफ आई कैन शो, ओके, दिस पॉइंट, ये जो आपके पास पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट जहां पे आपके पास इसके आगे मजीद करंट आपके पास नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इसके बाद आपके पास दिस इज कॉल्ड पिंच ऑफ कंडीशन। इसको अभी हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। सो बिफोर डिस्कसिंग द इफेक्ट ऑफ पिंच ऑफ, व्हाट इज पिंच ऑफ, उसको देखने से पहले जरा इस कर्व को दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा इनलार्ज कर दिया मैंने। यहाँ पे हो क्या रहा है यहाँ पे स्टूडेंट्स, एज यू इंक्रीज द वीडीएस योर करंट इंक्रीजेस। इनिशियली आपके पास जब वीडीएस इज स्मॉल, करंट इज इंक्रीजिंग लीनियरली सॉर्ट ऑफ, बट आहिस्ता आहिस्ता जब आप वीडीएस को मजीद बढ़ाना शुरू करते हैं तो आपको पता चलता है कि नाउ दिस चेंज इन करंट इज नॉट लीनियर, दिस इंक्रीज इन करंट इज नॉट लीनियर। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके पास जो चैनल है उसकी रेजिस्टेंस आपके पास अब चेंज होना शुरू हो रही है। सो दिस कर्व बेंड्स बिकॉज द चैनल रेजिस्टेंस इट इंक्रीजेस एज यू इंक्रीज द वीडीएस। सो यहाँ पर है तो चैनल की रेजिस्टेंस कम है, थोड़ी सी और वीडीएस बढ़ाया, रेजिस्टेंस और बढ़ गई। ठीक है, when this region in this region when VDS is very small, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास sort of straight lines है, जो कि हमने आपको वहाँ पे पिछले लेक्चर के अंदर दिखाई थी when VDS was small। तो it is like a straight line with slope proportional to VGS minus VT। ये इफेक्ट हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। इसका स्लोप किस पे इफेक्ट डिपेंड कर रहा होता है? VGS minus VT के ऊपर। एनीवेज वी आर नॉट डिस्कसिंग इट एट दिस मोमेंट। हम ये देख रहे हैं कि जब VDS को बढ़ा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास क्या हो रहा है, मेरा करंट का जो रेट है इनकी वो स्लो होता जा रहा है, और एक पॉइंट आ रहा है जिस पॉइंट के बाद आपके पास करंट मजीद नहीं चेंज हो रहा, करंट हैज सैचुरेटेड। दिस रीजन इज कॉल्ड द स्टार्ट ऑफ सैचुरेशन पॉइंट। सो इससे पहले जो रीजन है इसको हम ट्राइओड रीजन कहते हैं, और इसके बाद का जो रीजन है दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन रीजन। पिंच ऑफ क्या चीज है इसको अभी हम देखने जा रहे हैं। इस पॉइंट के बाद एसेंशियली या थ्योरेटिकली हम कहते हैं कि चैनल अब इसकी शेप मजीद चेंज नहीं होने वाली। ठीक है, देयरफॉर अब जो करंट है वो, अब आप वीडीएस को कितना ही क्यों ना बढ़ा लें, चैनल पे अब मजीद कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली कुछ फर्क पड़ता है जिसको हम अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। और इन तमाम चीजों के साथ स्टूडेंट्स ये याद रहे कि हमारी पहली कंडीशन क्या है। द वेरी फर्स्ट कंडीशन इज दैट VGS शुड बी ग्रेटर देन VT, क्योंकि अगर ये कंडीशन मीट नहीं हुई फिर आप VDS को जितना ही क्यों ना बढ़ा लें, करंट इज नॉट गोइंग टू फ्लो इन इनहेंसमेंट टाइप। ओके, सो इससे पहले जो रीजन होता है, इस पॉइंट से जो पहले रीजन होता है, दिस इज गिवन बाय दिस रिलेशनशिप फॉर VDS इज लेस देन VGS minus VT। व्हाट इज VT? दिस VT इज थ्रेशोल्ड वोल्टेज, इसकी वैल्यू इज समवेयर अराउंड 0.5 to 1 वोल्ट। और अगर आप एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे आ जाते हैं कि VDS इज इक्वल टू VGS minus VT, तो हम कहते हैं दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। तभी आप देख सकते हैं यहाँ VDS सैचुरेशन लिखा हुआ है। इससे ऊपर अगर VDS बढ़ गया तो you have moved into the saturation region. Why is it called saturation region? Because the drain current has saturated. Okay students, now let's have a look कि what is pinch off और ये किस तरीके से आता है। So initially अगर हम देखें कि when there is no VDS, तो चैनल कुछ इस तरीके से होते हैं। ठीक है, यानी चैनल की डेप्थ सोर्स एंड के ऊपर भी है और ड्रेन एंड के ऊपर भी हमें नजर आ रही है। अब आहिस्ता आहिस्ता जब आप VDS को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि चैनल आहिस्ता आहिस्ता टेपर होना शुरू हो जाता है। चैनल इज नाउ स्लांटेड। आप देख सकते हैं इनिशियली आपने VDS इंक्रीज किया, अब क्या हो गया, यू कैन सी द डेप्थ ऑफ द चैनल हैज एक्चुअली डिक्रीज्ड। इनिशियली आपके पास यहाँ तक की डेप्थ अब यहाँ तक हो गई है एट ड्रेन एंड, हम ड्रेन एंड की तरफ देख रहे हैं। और अगर मैं मजीद इसको इंक्रीज कर देता हूँ फॉर इंस्टेंस, ठीक है, तो क्या हुआ, अब चैनल यहाँ पे आ गया, तो अगेन डेप्थ मजीद कम हो गई। ये क्या हो रहा है, आई एम इंक्रीजिंग माई VDS. So as you increase VDS, the depth at the brain end it starts decreasing. And at one point, what happens that the channel is just connected. इसकी depth is almost is equal to zero. तकरीबन zero हो जाती है, और you can say the channel is just connected with the drain. This point is actually referred to pinch off point. ये point कब आता है आपके पास कि जब your voltage between gate to drain is equal to threshold voltage. ठीक है, यानी गेट टू ड्रेन वोल्टेज की अगर हम बात करें, दिस इज योर गेट, V गेट टू ड्रेन इज इक्वल टू V थ्रेशोल्ड। ठीक है, इसकी जगह मैं यूं भी लिख सकता हूं इसे, इट इज VG, सॉरी, सो दिस इज योर गेट VGS माइनस VDS। क्यों? क्योंकि सोर्स मेरे पास क्या है, सोर्स इज इक्वल टू जीरो, सोर्स इज जीरो, तो इज सिंपली VG माइनस VD हो जाएगा। ठीक है,
सो मेरे पास ये कंडीशन आ चुकी है। सो नाउ इस कंडीशन को अगर मैं यूज करूं, आई कैन राइट डाउन एज VDS इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, VDS को वहां भेज दीजिए लेफ्ट पे, एंड आपके पास दिस कंडीशन विल बी VGS माइनस VT। ठीक है, और यही चीज आपको यहाँ पे बताई गई है। सो दिस इज माय कंडीशन। तो हम कहते हैं कि दिस इज द पॉइंट वेयर द चैनल हैज पिंच्ड ऑफ। तो आप चाहें तो इसे इस तरीके से लिखते हैं, VGD इज इक्वल टू VT लिखें, या आप लिखें VDS इज इक्वल टू VGS माइनस VT। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि रिलेशन अब आपके पास कहाँ से आ गया है। ठीक है, सो लेट मी रब दिस आउट। सो दिस इज द पॉइंट वेयर द चैनल इज पिंच्ड ऑफ। और इसके बाद हम कहते हैं कि थ्योरेटिकली अब आपके पास, आप VDS को और कितने बड़ा ही क्यों लें, आपके पास चैनल की जो शेप है वो चेंज नहीं होने जा रही है। ड्रेन एंड के ऊपर जो उसकी डेप्थ है, इट हैज डिक्रीज टू ऑलमोस्ट जीरो, एंड द चैनल इज पिंच्ड ऑफ। इफ यू इंक्रीज VDS देयर इज नो इफेक्ट, एंड नाउ करंट विल बी कांस्टेंट। मजीद क्योंकि चैनल आपके पास चेंज नहीं होने वाला है, सो अब आप जितने VDS बढ़ाते रहें, द चैनल इज फिक्स्ड। ठीक है, और अब करंट आपके पास कांस्टेंट हो चुके हैं। नाउ दैट यू नो दैट व्हाट इज पिंच ऑफ कंडीशन, तो अब देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है। वैसे मैं आपको बता चुका हूँ पिछली स्लाइड के ऊपर ही। सो इफ यू इंक्रीज VDS बियॉन्ड दिस पॉइंट, तो थ्योरेटिकली चैनल की शेप पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रिमेंबर, प्रैक्टिकली आपके पास कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है। दिस इज क्लोज टू लाइक अर्ली इफेक्ट जो हमने वहां देखा था BJT में। वहां पे भी हमने एक इफेक्ट देखा था कि करंट कांस्टेंट नहीं होता। तो यहाँ पे भी जो हम दिखा रहे हैं कि करंट इज कांस्टेंट, प्रैक्टिकली ये थोड़ा ऐसे नहीं होता। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। एट दिस मोमेंट वी आर अज्यूमिंग दैट दिस वोल्टेज, दिस करंट इज नाउ कांस्टेंट, और हम इसी के साथ ही इस कोर्स के अंदर इसे सॉल्व कर रहे होंगे। बट आपके जहन में ये रहे कि प्रैक्टिकली देयर इज सम इफेक्ट। ठीक है, अब इस पॉइंट की जब वंस वी हैव रीच्ड दिस पॉइंट, नाउ वी से दैट द करंट इज कांस्टेंट। ठीक है, थ्योरेटिकली। एंड किस पॉइंट के ऊपर है, दिस इज व्हेन VDS इज इक्वल टू VGS माइनस VT। सो दिस पॉइंट VDS इज इक्वल टू VGS माइनस VDS इज इक्वल टू VGS माइनस VT, दिस इज द स्टार्ट ऑफ माय सैचुरेशन पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट जो है हमारे पास, दिस इज द स्टार्ट ऑफ सैचुरेशन रीजन। सो पिंच ऑफ पॉइंट इज एक्चुअली द स्टार्ट ऑफ सैचुरेशन रीजन, क्योंकि इसके बाद आप मजीद जितना क्यों ना बढ़ा लें VDS को, द करंट इज कांस्टेंट। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे दिखाई गई है, और हम कहते हैं कि द ट्रांजिस्टर और द मॉसफेट हैज एंटर्ड इनटू सैचुरेशन रीजन। तो वो पॉइंट कौन सा होता है जिसके ऊपर ये सैचुरेट कर जाते हैं, दिस इज गिवन बाय दिस, ये मैं पीछे आपको ड्राइव कर चुका हूँ। दिस इज VDS इज इक्वल टू VGS माइनस VT। या फिर आप इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, अब आपको ये क्लियर होना चाहिए, ये दोनों एक ही है, VGD इज इक्वल टू VT। आप चाहे ये इक्वेशन लिखें, आप चाहे ये इक्वेशन लिखें, these two are exactly the same point and they are referring to pinch off point. So after this the device operates in saturation, जो लिखा हुआ है कि when VDS is greater than VDS saturation, यानी कि अब मिसाल के तौर पे आप यहाँ पर हैं। ठीक है, let's suppose आप इस पॉइंट के ऊपर हैं। ठीक है, तो now you see your VDS, the value of your VDS is greater than it is greater than the saturation value, which was VDS saturation equal to VGS minus VT। कौन सा पॉइंट है ये, पिंच ऑफ पॉइंट है। अगर आप इसकी वैल्यू इससे कम कर देते हैं फॉर इंस्टेंस, तो आप किस रीजन में चले जाते हैं, यू कम इनटू दिस रीजन विच इज कॉल्ड द ट्रायोड रीजन। तो हमारे पास वी हैव अ ट्रायोड रीजन एंड देन वी हैव अ saturation region. Okay, so now we are ready to discuss the ID-VDS relationship of our MOSFET. इसका कर्व हमने पीछे देखा था। अब उस कर्व को हम मैथमेटिकली किस तरीके से लिख सकते हैं, उसको यहाँ हम देखने जा रहे हैं। इसकी पूरी डेरिवेशन अवेलेबल है, बट उसकी थोड़ी कम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, तो अभी चूंकि हम ऑनलाइन जा रहे हैं तो मैं उसको हम स्किप कर रहा हूँ। जरूरत पड़ी तो हम उसे बाद में देखेंगे। So here we assume that we have applied some VGS and that VGS is greater than threshold voltage. This is the condition. ये अगर नहीं होंगी satisfy तो current ही flow नहीं करने वाला। And what we do now is that we apply some VDS between drain and source. और हमने इस वक्त ट्रायोड रीजन को देखने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ट्रायोड रीजन वो रीजन है जिसके अंदर चैनल इज कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब ये है कि अगर आप ड्रेन एंड पे भी देखें और अगर आप सोर्स एंड पे भी देखेंगे, चैनल की डेप्थ है। ठीक है, ट्रायोड रीजन के अंदर पिंच ऑफ इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सैचुरेशन रीजन। पिंच ऑफ पर डेप्थ जीरो हो जाती है। ठीक है, सो यानी कि पिंच ऑफ से पहले जितना रीजन है उसमें चैनल इज continuous, that is triode region, and this region is given by this relationship that VDS is less than VGS minus VT, and we also know that it is
tapered in shape. अच्छा जी, अब चूंकि जब आपने MOSFET की वर्किंग देखी थी तो मैंने बताया था गेट और चैनल एसेंशियली आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के तौर पे एक्ट कर रहे हैं और इनके बीच में एक SiO2 की लेयर है विच इज अ डाई इलेक्ट्रिक, सो दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ कैपेसिटर। तो आपके पास होता है कि इनकी एक, अगर आप कहें कैपेसिटेंस निकालना चाहे पर यूनिट गेट एरिया, दैट कैपेसिटेंस पर यूनिट गेट एरिया इज गिवन बाय दिस रिलेशनशिप, ठीक है, where this E naught X जो आपको लिखा हुआ है, this is the permittivity, ठीक है, this is your permittivity of the silicon oxide and this is given by this relationship where E naught is the permittivity of free space और air, ठीक है, E naught की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, और what is T ox, this is the थिकनेस ऑफ द ऑक्साइड लेयर, जो ऑक्साइड लेयर की जो आपने जो बिछाई है आपने उसकी थिकनेस कितनी है। हम इन रिलेशनशिप को इस कोर्स में इतना डिटेल में नहीं देखेंगे, बट आपको एटलीस्ट ये बेसिक पता हो कि अगर आपको निकालना पड़े तो किस तरीके से हम निकालते हैं, ठीक है जी। और ये थिकनेस जो है ऑक्साइड लेयर की, दिस इज अगेन अ प्रोसेस टेक्नोलॉजी पैरामीटर। तो जो हम फैब्रिकेशन कर रहे हैं मॉसफेट में, वहां पे हम डिटरमाइन करते हैं कि थिकनेस कितनी होनी चाहिए, कितनी कम कर सकते हैं, जितनी एडवांस है हमारे पास टेक्नोलॉजी उतनी हम थिकनेस को मिनिमाइज कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट कवर्ड इन दिस कोर्स, सो वी आर नॉट कंसिडरिंग द फैब्रिकेशन प्रोसीजर्स ऑफ मॉसफेट और बीजेटी, ठीक है, वो आप आगे एडवांस कोर्सेज में पढ़ेंगे इफ यू ऑप्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रीम। ओके तो अब हम एक रिलेशनशिप देख लेते हैं बिटवीन आईडी एंड वीडीएस। जैसे मैंने आपसे कहा कि हम इसकी डेरिवेशन नहीं देख रहे हैं, मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन दिखा रहा हूँ। सो ट्रायोड रीजन में अगर आप देखते हैं तो दिस इज द इक्वेशन, ठीक है, सो दिस इज आईडी द ड्रेन करंट, W और L आपको मालूम है, दिस इज कॉल्ड द एस्पेक्ट रेशियो, W इज द विड्थ ऑफ द चैनल एंड L इज द लेंथ ऑफ द चैनल, और ये आपके पास इक्वेशन आ रही है, ठीक है। यहाँ पे एक नई चीज जो आपको नजर आ रही है, दिस इज योर म्यू नॉट, सॉरी म्यू एन, सी नॉट अक्स मैं आपको बता चुका हूँ, दिस इज per unit gate capacitance. What is mu n? This mu n is actually the mobility of electrons, कि उनकी कितनी मोबिलिटी है, और इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी रिमेंबर इट इज मोर देन द मोबिलिटी ऑफ होल्स। और म्यू एन अगेन दिस इज अ फिजिकल पैरामीटर जो कि हम फैब्रिकेशन प्रोसेस टेक्नोलॉजी के टाइम के ऊपर डिटरमाइन करते हैं। तो हम दिस विल बी अ कांस्टेंट फॉर अस बिकॉज वी आर नॉट डीलिंग विद द फैब्रिकेशन पैरामीटर्स, सो म्यू एन फॉर अस विल बी लाइक अ कांस्टेंट। Now this relationship is for triode. If you see, this has a linear part and a non-linear part. ठीक है, तो देखिए ये क्यों नॉन लीनियर है, क्योंकि VDS स्क्वायर वाली टर्म आ रही है यहाँ पे। अच्छा अगर मैं आपसे कहूँ if VDS is very small, ठीक है, if I say that VDS is very small, then this relationship can be simplified, ठीक है, यानी कि ये जो टर्म है आपके पास, because when VDS is very small, then this term it actually it can be taken as zero because VDS is very small and the square of a small term is even smaller, और फिर आप उसे 2 से डिवाइड करें, so we can ignore that, ठीक है। सो आपके पास सिर्फ ये रिलेशनशिप रह जाता है, और ये रिलेशनशिप अगर आप देखें तो दिस रिलेशनशिप इज नाउ एक्चुअली अ डायरेक्टली अ प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, ठीक है, और सॉरी अ लीनियर रिलेशनशिप। नाउ ये वो रिलेशनशिप है जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। हियर यू सी दैट आईडी इज डिपेंडेंट ऑन टू पैरामीटर्स, वन इज VDS, ठीक है, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, एंड इट इज आल्सो प्रोपोर्शनल ऑन द ओवरड्राइव वोल्टेज और द इफेक्टिव वोल्टेज VGS माइनस VT। ये जो टर्म आपके पास है दिस इज योर कांस्टेंट, ठीक है, तो दिस इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी कह सकते हैं। सो ये रिलेशनशिप बिल्कुल वही बन जाता है जो हमने पीछे देखा था व्हेन VDS इज वेरी स्मॉल, ठीक है, अदरवाइज हम इसी रिलेशनशिप को यूज करेंगे। सो इफ इट इज गिवन दैट VDS इज स्मॉल तो फिर तो आप ये रिलेशन यूज करें, ठीक है, यानी सिंप्लीफाई कर लीजिए। अगर नहीं गिवन है तो यू हैव टू यूज द रिलेशनशिप जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, सो व्हेन VDS इज स्मॉल और वेरी स्मॉल, तो एक और रिलेशनशिप यहाँ पे बन सकते हैं जो मैं आपको बताऊं। सो अगर इफ आई वांट टू राइट डाउन इट्स VDS अपॉन ID, ठीक है, सो ये क्या बन जाएगा आपके पास, दिस रिलेशनशिप विल बी इक्वल टू 1 अपॉन म्यू एन C नॉट X, दिस विल बी W और L, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, एंड दिस कम्स आउट टू बी VGS माइनस VT, ठीक है, VDS अपॉन ID। और ये क्या होता है, दिस इज द रेजिस्टेंस, ठीक है, ये रेजिस्टेंस कब होती है हमारे पास, व्हेन VDS इज वेरी स्मॉल, ठीक है, दिस VDS इज वेरी स्मॉल, और जब VDS इज वेरी स्मॉल then your MOSFET actually it behaves like a resistor,
ठीक है, इसका हम न्यूमेरिकल भी करेंगे इंशाल्लाह, तो वहां से आपका एक कंसेप्ट क्लियर होगा। सो आई होप ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर है। सो ओके, इफ आई रब दिस आउट अगेन, we know the relationship for triode. So if I want to write down the relationship for saturation, मुझे क्या करना पड़ेगा? Saturation point कहाँ start होता है students? Saturation point starts at VDS is equal to VGS minus VT, ठीक है? So अगर इस equation में मैं ये term put कर दूं, I will get my relationship for saturation. आप place कीजिए and you will see that this is your equation. So now you see in saturation region ID is only proportional on dependent on VGS minus VT square. अब now ID is independent of VDS. You cannot see any VDS here. इसका मतलब ये कि आप VDS को कितना ही बड़ा क्यों लें, ID के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है? So this is the relationship for saturation students and this is relationship for triode. Please make sure that you remember these relations. ओके, ये जो आपके पास टर्म है म्यू एन सी नॉट एक्स, ये बेसिकली एक कांस्टेंट है, ठीक है? और हम इसको चाहें तो एक और नाम दे सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये जो टर्म है म्यू एन सी नॉट एक्स, इसको हम एक और नाम दे देते हैं के एन डैश। सेड्रस में इतने टर्म यूज किए तो हम ये यूज कर रहे हैं, ठीक है? सो के एन डैश इज अ कांस्टेंट और इसके डायमेंशन है एम्पियर पर वोल्ट स्क्वायर। सो हम अपनी इक्वेशन को अब मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वी कैन राइट डाउन आवर इक्वेशंस फॉर ट्रायोड रीजन। देखिए म्यू एन सी नॉट एक्स की जगह हमने क्या कर दिया, सिंपली के एन डैश पुट कर दिया। सो इट इज अप टू यू वेदर यू यूज दिस रिलेशनशिप और द प्रीवियस रिलेशनशिप, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। what we need is we need to again find out the value of k n dash first. So now we have the relationship for triode region and saturation region. इसमें जो आपके पास ये टर्म है W और L term, this is called aspect ratio. This is an important parameter and will be used multiple times in this course as well and in other courses of electronics as well. अच्छा, यहाँ पे जो आपके पास टर्म है दिस L minimum, दिस L, दिस इज द लेंथ ऑफ द चैनल। मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होती जा रही है, दिस लेंथ इज बीइंग कॉन्स्टेंटली रिड्यूस। जितनी जितनी टेक्नोलॉजी एडवांस होगी उतनी ही ये लेंथ कम होती जाएगी। ये यूं कह लीजिए, जितनी आप लेंथ को मिनिमम करने जा रहे हैं उतनी ही आपके पास एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व एन एग्जांपल स्टूडेंट्स। एक एग्जांपल करते हैं, उससे आपके कंसेप्ट थोड़े क्लियर हो जाएंगे। सो ये सवाल है, हमें गिवन है वी हैव द वैल्यू ऑफ एल मिनिमम, we have the value of thickness of the oxide, we have the value of mu n and we have been given the value of threshold voltage. सबसे पहले हमसे कहा है find C oxide per unit capacitance of the gate, ठीक है, and K n dash। और इसके रिलेशनशिप बड़े सिंपल है, हम इसको इतना कोर्स में यूज नहीं करेंगे। अगेन दिस विल बी गिवन टू यू, सो अगर आपको ये रिलेशनशिप नहीं भी मालूम सी नॉट एक्स का तो फिर कोई इशू नहीं, ठीक है? बट इसको, दिस इज द रिलेशनशिप, E naught x is the constant, ठीक है? For silicon you just put in the value and you will get the value of your capacitance. What is K n dash? K n dash is simply mu n into C naught ox. So this mu n is 450, it is given to you, ठीक है? ये basically this is fixed for electron, ठीक है? और होल्स के लिए देखेंगे तो दिस वैल्यू विल बी लेसर, क्योंकि होल्स की जो मोबिलिटी है वो कम है देन इलेक्ट्रॉन्स। सो अगेन ये पैरामीटर्स गिवन है, सिंपली इसको सिंप्लीफाई करके यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के एन डैश। सो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स इन दिस कोर्स वी विल अज्यूम और दिस वैल्यू ऑफ के एन डैश दिस विल बी गिवन टू यू। तो ये जो हमने दो स्टेप्स किए हैं यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस के एन विल डैश विल बी गिवन टू यू फॉर सिंप्लीफिकेशन, ठीक है? अगर नहीं गिवन है यू कैन फाइंड आउट यूजिंग दिस रिलेशनशिप, बट मोस्ट ऑफ द टाइम सवालों में आपको गिवन होगा, सो डू नॉट वरी। ओके स्टूडेंट्स, इन पार्ट बी व्हाट लेट्स सी व्हाट हैव बीन आस्क्ड। हमें कहा गया कि W और L की वैल्यू इज गिवन टू अस 8 एंड 0.8 माइक्रोमीटर और 0.8 माइक्रोमीटर। सो ये वैल्यू आपको गिवन है W और L की। What we have to do is we have to find out the value of V overdrive. What is V overdrive students? I hope ये आपको क्लियर है। This V overdrive is nothing but VGS minus VT, ठीक है? So V overdrive is equal to VGS minus VT. So हमें ये आइडेंटिफाई करना है। Once we have the overdrive voltage, we can find out the value of VGS as well, and we can also find out the VDS minimum needed to operate the transistor in saturation region. हमें ये मालूम है कि हम saturation region के अंदर है। और ड्रेन करंट की वैल्यू कितनी है जी? 100 माइक्रो एम्पियर। सो इफ वी नो दैट वी आर इन सैचुरेशन रीजन, तो ये हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है? आईडी इज हाफ के एन डैश W और L
वी ओवर ड्राइव स्क्वायर, वी ओवर ड्राइव क्या था, VGS माइनस VT। तो अब हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, पैरामीटर्स गिवन है, आई नो द वैल्यू ऑफ ID, I know the value of K in dash, and I know the value of W over L. Now, once you put in the values, you will be able to find out the value of V over drive. अच्छा जी, when you do so, you will see that V over drive की वैल्यू आ गई आपके पास 0.32, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे जब आप अंडर रूट लेंगे, you will see कि V over drive की आपके पास दो वैल्यूज आएंगी, ठीक है। So this will be plus minus 0.32 volts, ठीक है, क्योंकि जब आप अंडर रूट लेते हैं तो दो पॉसिबल वैल्यूज आ रही होती है। यहाँ पे जो हमने वैल्यू ली है वो कौन सी ली है, वो पॉजिटिव ली है। क्यों पॉजिटिव ली है, इसके पीछे एक रीजन है। सी व्हाट इज वी ओवर ड्राइव, वी ओवर ड्राइव इज इक्वल टू VGS माइनस VT, एंड दिस हैज टू बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है, क्योंकि आपके पास क्या डिफरेंस है, VGS हैज टू बी ग्रेटर देन VT। अगर ये आपके पास वैल्यू पॉजिटिव नहीं है तो इसका मतलब ये कि VGS is less than VT, and if VGS is less than VT, then this means the channel has not been created, ठीक है। So therefore in NMOS, always in NMOS, this is actually always positive, this condition is for NMOS, PMOS में different हो जाएगा, but we are not talking about PMOS at this moment. Once we have the value for drive voltage, we can find out the value of VGS as well, because VO drive is equal to VGS minus VT. So just put in the values, you will be able to find out the value of your gate to source voltage as well, ठीक है। And what is this VDS minimum? VDS minimum क्या होता है आपके पास, हमें VDS minimum भी पूछा गया था। VDS minimum is the minimum point where saturation region starts, ठीक है। तो सैचुरेशन रीजन की मिनिमम कंडीशन क्या होती है, VDS इज इक्वल टू VGS माइनस VT। तो ये जो आपको कंडीशन है, दिस इज ओनली वैलिड फॉर, दिस इज ओनली वैलिड फॉर, यानी VDS मिनिमम इज इक्वल टू V और ड्राइव, दिस इज ओनली फॉर पिंच ऑफ पॉइंट, ठीक है, रिमेंबर। तो आपके पास पिंच ऑफ कंडीशन में आपके पास VDS इज इक्वल टू V ओवर ड्राइव, और क्योंकि ये VDS मिनिमम सैचुरेशन में मिनिमम पॉइंट कहाँ पे होता है स्टूडेंट्स, इट इज एट पिंच ऑफ, क्योंकि पिंच ऑफ से पहले आपके पास क्या ट्रायोड है और उसके बाद आपके पास सैचुरेशन रीजन है। पिंच ऑफ इज द स्टार्टिंग पॉइंट, देयरफॉर VDS मिनिमम रेफर्स टू योर पिंच ऑफ पॉइंट। ओके, सो नाउ वी आर ऑन आवर लास्ट पार्ट, पार्ट सी। पार्ट सी में हमसे कहा गया है कि फॉर द डिवाइस इन बी, यानी पार्ट बी की बात कर रहे हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ V ओवर ड्राइव एंड VGS required to cause the device to operate as 1000 ohm resistor for very small VDS, ठीक है। So we have to find the value of V over drive and VGS, ठीक है। जब MOSFET is being operated as 1000 ohm resistor, मैंने आपको बताया था कि when VDS is very small, तो आपके पास MOSFET behaves as a resistor, ठीक है। तो और ये कौन सा रीजन होता है, क्या ये सैचुरेशन रीजन होता है, हरगिज नहीं, क्योंकि VDS इज वेरी स्मॉल, एंड VDS स्मॉल कहाँ पे होता है, इन ट्रायोड रीजन, और स्पेसिफिकली एक्चुअली ट्रायोड रीजन में भी जब when VDS इज वेरी स्मॉल, स्टार्ट ऑफ द ट्रायोड रीजन, ठीक है। सो व्हेन VDS इज वेरी स्मॉल, तो मैंने आपको पीछे बताया था कि VDS स्क्वायर वाली इक्वेशन आपके पास, आप VDS स्क्वायर वाली टर्म को आप इग्नोर कर सकते हैं ID की इक्वेशन में। सो आपके पास सिंप्लीफिकेशन के बाद जो रिलेशन बन जाएगा वो ये रिलेशन बन जाएगा, ठीक है। व्हाट इज RDS, RDS इज सिंपली VDS अपॉन ID। ये आपके पास रिलेशन कहां से आया, दिस इज VDS अपॉन ID, जो इक्वेशन मैं आपको पीछे सॉल्व करा चुका हूं, ठीक है, VDS अपॉन ID। सो नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ RDS, एंड अब यहाँ पे हमें गिवन है कि RDS की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 1000 ओम, और K डैश W और L मालूम है, इससे मैं V और ड्राइव की वैल्यू निकाल लूंगा। सो व्हेन यू प्लग इन द वैल्यूज, यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ V ओवर ड्राइव, और जब एक दफा आपके पास V ओवर ड्राइव की वैल्यू आ गई, यू कैन सिंपली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ VGS एज वेल। व्हाई, बिकॉज V ओवर ड्राइव इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू VGS minus VT. So what we need is we just need to find out the value of our overdrive voltage. आप just calculator में put करें, you will get the value of overdrive voltage, and this comes out to be 0.52 volts. And once you have overdrive voltage, you can find out the value of VGS as well. Simply इसमें VT add कर लीजिए. So here is this your answer, VGS is here,
एंड आई होप ये एग्जांपल आपको समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। दिस वाज अ वेरी सिंपल एग्जांपल, इसको एक दो बार देखिए ताकि आपको समझ में आए कि हमारे पास क्या हो रहा है। इन पार्ट बी वी वर इन सैचुरेशन रीजन, ठीक है। यहाँ पे हम कहाँ पर हैं, वी आर इन ट्रायोड रीजन। कैसे पता चला कि यहाँ पे ट्रायोड रीजन में, क्योंकि आपसे कहा गया कि फॉर वेरी स्मॉल वीडीएस, एंड वेरी स्मॉल वीडीएस इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू आर इन ट्रायोड region or the beginning of triode region. Okay, so before we finish this class for this week, okay, this is the last class, last recorded class for this week. I would like to give you some home task. ये कुछ examples हैं. Students, please make sure कि आप इन example को solve करिए. This example D5.3 is a very interesting example, ठीक है. Solve कीजिएगा, आपको problem नहीं होगी इंशाल्लाह. But still, if you feel कि आपको problem हो रही है, you can definitely ask during our interactive session. ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इंशाल्लाह हम अगली क्लास के अंदर या नेक्स्ट वीक हम मजीद एग्जांपल सॉल्व करेंगे। वी विल स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल एग्जांपल अगेन नेक्स्ट वीक, ताकि आपके कंसेप्ट दोबारा रिवाइज हो सके। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मॉसफेट के लेक्चर्स को अच्छी तरीके से देखिए, ताकि आने वाले लेक्चर्स आपको सही तरीके से समझ में आ सके। सो टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, इट्स मोहम्मद वैस साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।